و آل محمد کے لیے بھائی ریحان جعفری صاحب کہ وہ ذکر محمد و آل محمد سے ہمارے اذہان کو سیراب کریں گے۔ ان کے فوراً بعد سید مشتاق صاحب جی اور ان کی فوراً بعد جناب مرزا عرفان حیدر الحسینی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، دوے ہاتھ بلند کے کلم دی شبی بنا کے نعرہ حیدری، بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآل۔ اجازت حجی نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام امی المکی المدنی علی تیتہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد صلوات وعلا اطر تبین تحرین المعصومین وعلا الذین شعب الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین کا احسان یاد ہے وہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ صدا سلامت رہیں، صدا آباد رہیں۔ امام آج کی رات کا صدقہ آپ کو ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ماتمی کی آنکھ سے جب آنسو نکلے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ صرف کربلا والوں کا نام ہو۔ اپنی کسی پریشانی سے حسین کا زیادہ پریشان نہ ہو۔ جو دعائیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں، جس امام سے آج کی رات منسوب ہے وہ دل کے راز بخوبی جانتا ہے۔ دعا ہے میرے امام ہر ماتمی کے اس فرش عذاب کو چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر نیک دعا مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس کی ہر حاجات کو پورا فرما۔ جتنی مجلس یہ آج وسیع ہوئی ہے اگلے سال اس سے بھی زیادہ وسیع ہو اور اس نوکر کی حاضری ادھر ضرور ہو۔ سب کی ایک دعا ہے اور سب سے بڑی دعا ہے اور آخری دعا ہے کہ عباس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے، کعبے پہ علم رکھنے کے لیے عسکری کے چاند کا ظہور عطا فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ امام کا ظہور ہو وہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ نوکری کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس بادشاہ کے ذکر کرنے لگا ہوں کہ جسے اللہ نے وقت سے پہلے ہی صاحب اوقات بنا دیا ہے، وقت سے پہلے ہی صاحب اوقات بنا دیا۔ تھوڑا سا ذکر جناب ابو طالب کا۔ میں مصرع پہلا پڑھنے جڑا بندہ شامل ہو گیا پوری مجلس نوں نال لگے چلاں گا، جڑا نہ بولیا پھر پوری مجلس جو بولے نہ بولے اوندی اپنی مرضی ہے۔ پہلا مصرع میں پڑھنے لگا، کر دیا کام نرالا ہے ابو طالب نے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کر دیا کام نرالا ہے ابو طالب نے، سب کی مشکل کو بھی ٹالا ہے ابو طالب نے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کر دیا کام نرالا ہے ابو طالب نے، سب کی مشکل کو بھی ٹالا ہے ابو طالب نے، اور رزق ملتا ہے نبی اور علی کے در سے، پالنے والوں کو بھی پالا ہے ابو طالب۔ ہائے 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 ہائے، کون سی جنت میں لا کے کھڑا کر دیا شاہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی معیار ہے گھڑیاں کا، کیا بات ہے۔ رزق ملتا ہے نبی اور
अली के दर से, पालने वालों को भी पाला है अबू तालिब ने। एक लफ्ज़ है पदम, गिनती की हद को कहते हैं पदम। 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, सबसे आखिर में आता है पदम, गिनती की हद को कहते हैं पदम। मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ, जिसकी ताज़ीम की आहट पे ही उठे 14। जड़े समझ गए ने, जड़े पहुंच गए ने, जिसकी ताज़ीम की आहट पे ही उठे 14, ऐसा सरदार मिलेगा ना कहीं पद्मों में। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। जिसकी ताज़ीम की आहट पे ही उठे 14, ऐसा सरदार मिलेगा न कहीं पद्मों में। क्या खबर कितना बड़ा है अबू तालिब शौकत, ओ मुस्तफा गोद में बैठा है अली कदमों में। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाथ दूजा बुलंदर सलावत। क्या बात है, क्या खबर कितना बड़ा है अबू तालिब शौकत, मुस्तफ़ा गोद में बैठा है अली कदमों में। मिसरा पूरी मजलिस निचोड़े, वहदत का नूर उसकी जबी से आया हुआ, वहदत का नूर उसकी जबी से आया हुआ, वहदत का नूर उसकी जबी से आया हुआ। घर उसका मुस्तफा की भी जाए अमा हुआ, घर उसका मुस्तफा की भी जाए अमा हुआ। और जिसका कहा है तुमने कि कलेमा नहीं पढ़ा, कलेमा उसी की गोद में पल कर जवा। हाय 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 हाय, आपकी क्या बात है, आपके मयार को सलाम है, जो बोल रहे हैं उनकी नस्लों को सलाम है। क्या बात है। जिसका कहा है तुमने कि कलेमा नहीं पढ़ा, कलेमा उसी की गोद में पल कर जवा हुआ। मैं मिसरा करने लगा हूँ, तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का शरफ। एक लफ्ज़ है कफ, कफ कहते हैं ये हथेली को, इसको कहते हैं कफ, ऐसे हो रहे कफ बन जाता है। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का शरफ, उसने पाया रिज्क की तकसीम पे मामूर कफ, उसने पाया रिज्क की तकसीम पे मामूर कफ। दो जहानों में ये इमरान का एजाज है, एक नाजानों पे मदीना, एक जानों पे नजफ। हाय 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 हाय, एक जानों पे मदीना, क्या बात है, एक जानों पे मदीना, एक जानू पे नजफ। अगर आप बाप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो बेटा कितना अच्छा सुनेंगे। एक बस रुबाई मेरे इमाम की, मैं कह रहा हूँ मिसरा में बड़ा मज़ेदार पढ़ने लगा हूँ, बस आपने मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है और मैं आपको मेराज तक पहुँचा दूंगा। मिसरा बहुत वजनी है। मेरे अली से अदावत का शौक है जिसको, मेरे अली से अदावत का शौक है जिसको, कदम कदम पे वो लानत मेरी वसूल करे, कदम कदम पे वो लानत मेरी वसूल करे। और अली के दुश्मनों, जन्नत का तो सवाल नहीं, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। हाय 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 हाय, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। बस मेरे हिस्से का फजाइल हो गया है। कैसे बताऊं कितना मारा इन्होंने इमाम मूसा काजिम को। शहादत मैंने नहीं पढ़नी है, एक दुख बयान करना है, एक मुसीबत बयान करनी है मेरे इमाम की। जिसने हाय कर ली वो सवाब में शरीक हो जाएगा। कैसे बताऊं कितना मारा इन्होंने मेरे मौला को। मूसा काजिम की बेटियों के बाल खुले, कम से कम 18 बेटे, 19 बेटियां,
घर में सिपाही दाखिल हो गए। गरीब के मदीने वालों को आदत हो गई थी, इस घर के दरवाजे पे जब दिल करे हमला कर सकते हैं, इस घर के दरवाजे पे जब दिल करे हमला कर सकते हैं। 20 शवाल 179 हिजरी पर्दा कराए बगैर गरीब के घर में दाखिल हो गए। गरीब घर पे नहीं था, इतना मिली कि नाना के रोजे पे नमाज पढ़ने गया हुआ है। पहली रकात का दूसरा सजदा, मेरे इमाम के गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़िया। और मैं जुमला ये पढ़ना नहीं चाहता, मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूँ। जहाँ कोई मेरा भाई शाह बैठा हुआ ना, सैयद बैठे हैं, आपको आपकी दादी के वास्ते मुझे माफ कर देना, मैंने ये जुमला पढ़ना नहीं था, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कर देना। और नाना के रोजे पे गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के, गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के नाना के रोजे पे गरीब ने ये गिला नहीं किया, नाना मेरे बाल टूट गए, गरीब ने ये गिला नहीं किया, और नाना मेरे शहर में मेरी तौहीन की गई। और रोज़ा रसूल की तरफ मुंह करके गरीब कहते नाना गवाह रहना, तेरी उम्मत ने मुझे नमाज भी पूरी नहीं पढ़ने दी, और तेरी उम्मत ने मुझे नमाज भी पूरी नहीं पढ़ने दी। गरीब को रोज़ा रसूल से बाहर ले आए, सारा शहर इकट्ठा हो गया। अल्लाह न करे इधर पुलिस आ जाए ना, एक बंदे के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दे, आपकी जान पहचान का बंदा भी ना हो, तो 4-5 बंदे तो इकट्ठे होंगे कि इस गरीब को क्या जुर्म है, इस गरीब के हाथों में हथकड़ियाँ क्यों है। पूरा शहर देखता रह गया, किसी ने नहीं पूछा गरीब के तो गले में तो क्यों है, हाथों में हथकड़ियाँ क्यों है, पाँव में बेड़ियाँ क्यों डाली है, गरीब का जुर्म क्या है। कुड़ियों वालों, अगर आपने आज तक सुने तो मुझे माफ कर देना, किसी जाकर ने कहा कि तो अलहदा था, बेड़ियाँ अलहदा थी, जंजीरें अलहदा थी, तो मुझे माफ कर देना। एक ही लोहा था, उसी में ही जंजीरें थी, उसी में ही हथकड़ियाँ थी, उसी में ही तोक था। मुसाइब दे विच सब तो वड्डा मैं मिसरा पढ़न लगा, और जुमला बड़ा वड्डा है। 68 किलो लोहा गरीब के जिस्म में इन्होंने डाल दिया। सिपाही की तरफ देख के गरीब फरमाते तूने ले जाना है, मैंने चले जाना है, मैं अपनी इल्म इमामत से जानता हूँ, मैंने वापस नहीं आना। और मेरे 18 बेटे हैं, 19 बेटियाँ हैं, और बेटे घर से बाहर निकले मुझे मिलने के लिए। कोई मुझ तक पहुँचे ना पहुँचे उसका अपना मुकद्दर है, कोई मुझ तक आ सके ना आ सके उसका अपना मुकद्दर है। मेरी बेटियाँ हैं और उनका मिजाज ये है कि मैं सुबह की नमाज पढ़ने के लिए नाना के रोज़े पे चला जाता हूँ। मेरी बेटियाँ नमाजी बेटियाँ दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, मेरी नमाजी बेटियाँ दरवाजे पे जो खड़ी है वो खड़ी रहती है, जो बैठी है वो बैठी रहती है। मेरी नमाजी बेटियाँ मेरा इंतज़ार करती हैं, मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं जाके अपनी बेटियों को आखिरी बार सलाम कर रहा हूँ, आखिरी बार अलविदाई दे आऊँ। उन कमीनों ने कहा तेरी कोई जमानत है? और वो मेरा गरीब मौला फरमाते हैं और जमानत तो मुजरिम की होती है, मेरा जुर्म क्या है? कमीने फरमाते तेरा ये जुर्म थोड़े कि तू हुसैन का बेटा है, तेरा ये जुर्म थोड़े। मेरे गरीब मौला ने कहा है कोई जो मेरी जमानत देने को तैयार हो? मदीने वालों ने मुंह दूसरी तरफ कर दिया। एक बंदा अपनी दुकान से उठा आके कहते कि मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये ना आया तो आप मुझे अपने साथ ले जाना। सिपाही कहते दो में से एक बात पक्की है, या तू मदीने का नहीं या तू मुसलमान नहीं, या तू मदीने का नहीं या तू मुसलमान नहीं। उसने कहा तुम सही कह रहे हो, मैं मदीने का तो हूँ लेकिन मुसलमान नहीं हूँ, मैं इसकी जमानत देता हूँ। उन्होंने कहा क्यों जमानत देते? कहते 20 साल हो गए मेरी और इसके घर की दीवार है कि आज पहली बार पता लगा इसकी बेटियां भी हैं और इसके घर से बेटियों के बोलने की आवाज नहीं आती। आज पहली बार पता लगा। उतारो इसका तोक, डालो मेरे गले में, इसको जाने दो, ये ना आया तो मुझे ले जाना, मुझे
غریب کا جنازہ ہوتا ہے، میری بیویوں نے پردہ اتار کے ماتم کرنا شروع کیا. کسی نے کہا بابا یہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا بابا یہ جو گلے میں ہے یہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا بابا یہ جو پاؤں میں ہے یہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا یہ جو ہاتھ میں ہے بابا اسے کیا کہتے ہیں. میری امام نے مجموعی جواب دے دیا. میرے امام کہتے ہیں یہ بیٹا یہ مبلغوں کا لباس ہے، جو مبلغ امت کو پسند آ جائے وہ امت یہ لباس پہنا کے چھوڑ دیتی ہے اپنے علاقوں میں. قوم کے ملکہ کہتی بابا آپ سے پہلے بھی یہ لباس کسی نے پہنا ہے، اور چیخ نکل گئی میرے امام کی. لوگ کہتے ہیں اونچا نہ بول، میں اکیلا جا رہا ہوں، اس کے ساتھ مائیں تھی، اس کے ساتھ بہریں تھی، اس کے ساتھ پھوپھیاں تھی. آخری جملے ہائے کر دینا اور ثواب میں شریک ہو جانا. اور شرابیوں کا مجمع تھا، بے غیرتوں کا ہجوم تھا. اس کی ماں کہہ رہی تھی سجاد او میرا سر پھٹ گیا، اور سجاد لعنت اللہ القوم الظالمین.